Hello and welcome to Perfection IAS. I welcome you all to today's editorial analysis. आज का द हिंदू 1 August 2023. We are starting the analysis of द हिंदू. और ये जो आर्टिकल आया है आज का, which is the lead editorial of today, it's about Article 370 and we all know that Article 370 का एब्रोगेशन आज से 4 साल पहले हो गया. ठीक है, on the 5 of the August. Now the thing is कि अभी जो है हियरिंग चल रहा है इस आर्टिकल के रिलेटेड इन दी सुप्रीम कोर्ट. तो टिल द टाइम देयर इज अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अबाउट दिस आर्टिकल और द केस गेट्स फाइनलाइज्ड, जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तब तक ये केस प्रीजुडिशियल सबजुडिस है. तो जब तक ये केस सबजुडिस रहता है हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता. हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब बनता है व्हेन द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट कम्स आउट. प्लस the author is an advocate who is practicing in Madras High Court. तो जो इस एडिटोरियल की लैंग्वेज है, दिस इज मोर ऑफ अ लैंग्वेज विच इज लीगल इन नेचर. तो आई थॉट वी शुड नॉट कवर दिस येट. कल से जब जुडिशियरी में हियरिंग लगेगा इस केस का, जो भी वर्डिक्ट आता है केस के क्लोज होने तक, वी विल वेट टिल दैट. उसके बाद हम इस आर्टिकल का दोबारा से एक एनालिसिस करेंगे. इससे पहले भी हमने एक बार किया हुआ है आर्टिकल 370. Now, moving to the editorial, the article which is about the semiconductors, and this article is about a pitch to draw in semiconductor player must go beyond incentives. कि हम जो कर रहे हैं that is incentivizing the semiconductor manufacturers to invest in India. We should do much more than incentivizing so that we can attract more investment and so that we can provide a more platform, a ground level platform, a level playing platform for the manufacturers at the national level. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए our prime minister portrayed or our prime minister presented this prospective to the investors last year also in the semicon and this year also, and government has highlighted this thing that we will provide low corporate tax rates and we will provide SOPs for all the manufacturing projects. Plus, we will incentivize the tech firms with around 50% of the financial assistance, which means that government is going to bear the financial assistance for these investors of semiconductors in India so that they can establish the co-located facilities. माइक्रॉन सप्लायर्स, जो कि यूएसए की यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, लास्ट टाइम इनने पिछले महीने दे साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. ठीक है, विद गुजरात गवर्नमेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट वर्थ 22,500 crores. ठीक है, तो एक यूनिट वो एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, यूएस बेस्ड कंपनी है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, दैट इज वन मोर थिंग जो पिछले महीने की न्यूज से है. However, the author here highlights that several countries जिन्होंने देखा अभी तक who are seeking to de-risk themselves from the dominance of China, they are now playing a part in the manufacturing supply chain through collaborative friend shoring agreements. That is, they will provide a shore to the investor so that the investor can invest in that country while it is moving away from China, because China was the hub of the semiconductor manufacturing industry. So when the investors and the manufacturers are moving away from China, we should provide that friend shoring place, or we should provide that shore so that they can sail their boats at our banks. Now, इसके बाद जो ये numbers दिए गए हैं यहाँ पे, this is all about semiconductor makers and semiconductor industry. The main point here is that the investors will compare India's trade linkages with the world market.
through bilateral or multilateral compacts. And in this approach, we should also focus on the tariffs which India is imposing on the exports and imports from those countries जहां से ये इन्वेस्टमेंट्स आ रही है या जहां से वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगते हैं. तो उस पे जो टैरिफ्स लगते हैं उन टैरिफ्स को भी रिड्यूस करना पड़ेगा. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें ये चीज भी करना पड़ेगा. दैट इज वी शुड प्रोवाइड दीज थिंग्स. तो अभी तक अगर आपने देखा तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी वाज द वन जिसके साथ हमने एमओयू साइन किया. प्लस इससे पहले देयर वाज इंडिया यूएस फिफ्थ कमर्शियल डायलॉग 2023 जिसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक और एमओयू साइन हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में. नाउ द थिंग इज कि यूएस का एक एक्ट है दैट इज नोन एज यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 का एंड इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन they are now collaborating on a mechanism for semiconductor supply chain resilience and diversification. First is chips and science act 2022. ठीक है. and India's semiconductor mission. The project aims to create around 5,000 jobs and to contribute India's resilience, India's reliance and self-reliance in memory chip manufacturing. So it aligns the government's goal of promoting domestic manufacturing and reducing the import dependency. This will also bolster India's position at global semiconductor and manufacturing level. However, अगर आपको semiconductor chips के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना है तो these are the silicon material. This is the silicon material. They have conductivity between conductor and the insulators. Particularly जो elements use होते हैं that is pure silicon, germanium, gallium, arsenide and cadmium selenide. So they are the basic building blocks at the heart and brain of all the modern electronics. They will help, the semiconductor industry will help India's digital transformation under Industrial Revolution 4.0. So moving ahead, the India's semiconductor market is expected to reach $55 billion by 2026 with its own consumption of semiconductors, and the expansion could lead to $80 billion by 2026 and $110 billion by 2030. However, there are challenges which are associated to semiconductor manufacturing in India. That is, it requires $1 billion of investment from small scale to large scale manufacturing of semiconductors. Higher investment is required. Minimal fiscal support is provided from the government. And we do have lack of fabrication capacities at ISRO and DRDO. ठीक है. तो ISRO and DRDO have their respective fabrication foundries, but they are primarily their own requirements, not actually in the not actually for all of not actually for the large scale production. So India's only fabrication industry is located in Mohali, Punjab. If you talk about the
steps which have been taken by the government till date. One is the production linked incentive scheme, and India has announced around $10 billion $10 billion scheme, that is the production linked incentive scheme to encourage semiconductor manufacturing in the country. Plus, in 2021, METI, or the Ministry of Electronics and Information Technology, has also launched a design linked incentive scheme to nurture 20 domestic companies. इनको नर्चर करेंगे, एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, नर्चर करेंगे, दैट इज दे विल हेल्प देम एंड दे विल फैसिलिटेट देम विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉर बिल्डिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एंड they will achieve a turnover of rupees 1500 crore in 5 years. India has also another scheme which is known as the scheme for promotion of manufacturing of electric components and semiconductors, known as SPECS, SPECS scheme for manufacturing of electronics components. India's semiconductor mission, India Semiconductor Mission, was launched in 2021 with an outlay of 76,000 crores. This provides for a comprehensive program for the development of sustainable semiconductor and digital ecosystem in India, particularly the displays. जिस डिस्प्ले पे आप पढ़ रहे हो और जिस डिस्प्ले में पढ़ा रहा हूं, the display manufacturing ecosystem in India has to be developed through India's semiconductor mission. Done. And that's all about this article जो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में. Moving ahead to the next editorial, and next editorial is about recalibrating the India's clean energy strategy, और कैसे हम recalibrate कर सकते हैं इंडिया का clean energy strategy. This is all about the author, who is an currently fellow and director of the Director Research Coordination and Council of Energy, that is CWW. It's an organization of under the government of India. So he talks about first scheme, which is the Gramin Vitrak Yojana, जो 2009 में आई थी. उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2016 में आई थी, और this provided LPG connection of to 9.5 crore new households. So हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम इस पॉइंट को याद रखें. This will help us in answer writing. So currently the author talks about that how the LPG based cooking needs to be replaced by what? By e-cooking. ठीक है. So e-cooking is something which this author highlights here, that we should shift to electronic devices, we should shift to the electronic stove tops. जिससे क्या होगा? The LPG cooking will be there will be a transition in the LPG cooking. And now he highlights here that the LPG story, in the recent past, the share of Indian households using LPG has currently risen to 71% in 2020. और उसके बाद the author highlights कि कितनी प्रॉब्लम्स आ गई एलपीजी इंडस्ट्री में. फर्स्ट वाज कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और क्रूड ऑयल प्राइसेस की इंस्टेबिलिटी की वजह से. तीन चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से एलपीजी का प्राइस इंक्रीज हुआ और एलपीजी का यूजेज कम हुआ व्हेन वी टॉक अबाउट द एलपीजी कनेक्शंस. प्लस कोविड की वजह से सब्सिडी हमें वापस लेना पड़ा एलपीजी सिलेंडर से सारे कंज्यूमर्स के लिए. देन वन मोर थिंग इज देयर कि होम डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है हमारे पास जो एलपीजी को बराबर रूरल एरियाज तक पहुंचा सके. उसकी वजह से भी वी विल नीडेड फॉर सब्सिडीज टू एंटाइज द पुअर टू कंज्यूम एलपीजी एंड अवेल इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. देयर इज इम्पोर्टेड एलपीजी ऑलवेज इन इंडिया, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता है. और आपने अगर देखा होगा तो लास्ट टू लास्ट ईयर वी सॉ डबलिंग ऑफ प्राइसेस एट नॉमिनल टर्म्स.
in LPG. Hence, the author provides here a solution, that is, we should diversify the sources, and then we should opt for clean cooking. तो पहली चीज क्या है? adoption of a suite of clean cooking technology and shift from LPG only strategy, कि बस हमें LPG only strategy adopt करनी है, उससे हट के हम अब क्या करें? इलेक्ट्रिक कुकिंग करें, इंडक्शन कुक टॉप्स, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज द ऑथर सेज कि अगर आप इलेक्ट्रिक कुकिंग करते हो तो उस इवन द इलेक्ट्रिसिटी इज रेटेड एट $8 पर यूनिट, तो तब भी जो करंट एलपीजी के प्राइसेस है उससे कम ही बिल आएगा कंपेरेटिव टू दी ई कुकिंग। सो वन पॉसिबल मैकेनिज्म टू शिफ्ट सच बिहेवियर कुड बी कि आप एलपीजी के प्राइसेस बहुत ही ऊपर लेके जाओ, जिससे लोग खुद ही ई कुकिंग पे आ जाए। एंड सेकेंड थिंग कैन बी हाइब्रिड स्टोव्स, ठीक है। हेयर ही सेज अबाउट दी हाइब्रिड स्टोव्स, जिसकी वजह जिससे क्या होगा? गैस एंड इलेक्ट्रिक कुकटो इन वन डिवाइस, है ना, और उससे एक बिहेवियरल चेंज आएगा, और उससे जो है हाउस होल्ड जो है दे विल बी मोटिवेटेड टू यूज दी अनदर स्टोव ऑल्सो, ठीक है। तो दो स्टोव्स अगर हैं, एक पे गैस चल रही है और एक पे बिजली का इलेक्ट्रिक स्टोव है, ठीक है। इट्स अ सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके पास ऐसा स्टोव है जिसपे एक साइड से इलेक्ट्रिक स्टोव है और दूसरी साइड से एलपीजी स्टोव है, ठीक है, तो जब इस पे कुकिंग होगी तो इस पे भी कुकिंग होगी, तो धीरे धीरे दिस ट्रांजिशन विल हैपन एंड दिस विल बी अ मूव। और ये जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। सो बिफोर गोइंग, ओके, आई गेस वी शुड शिफ्ट टू दैट एडिटोरियल, और उसके बाद हम टेररिज्म पे वापस आते हैं। and there is one more editorial, and this editorial is about the hybrid electric vehicle imperative। तो ये जो एडिटोरियल है अबाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट सेज दैट कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका फ्यूल इकोनॉमी भी ज्यादा है, हायर फ्यूल इकोनॉमी, प्लस इट हैज रिड्यूस्ड कार्बन इमिशंस, मतलब कम कार्बन इमिशंस करता है कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो। हाँ, फुल ईवी के बजाय फुल ईवी से कंपेयर करें तो उतना ज्यादा नहीं करता, बट रिड्यूस रिड्यूस्ड कार्बन इमिशंस करता है। प्लस दिस इज अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर द शॉर्ट टर्म। हाउएवर वी नीड टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट चैलेंजेस। तो जिस्ट है इस एडिटोरियल का ये, दैट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट चैलेंजेस को इनकलकेट करना है, उनको उन चैलेंजेस को सॉल्व करना है, बट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज द ऑथर हियर सेज दैट दिस कैन बी अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ड्यू टू इट्स फ्यूल इकोनॉमी एंड एमिशन बेनिफिट्स। अब इस एडिटोरियल से अगर आपको कुछ पॉइंट्स उठाने हैं तो वो मैं आपको बता दूं अभी, कि पहला है दी नेट एमिशंस ऑफ हाइब्रिड ई व्हीकल्स। तो एमिशंस पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो पोल्यूशन से हो, पोल्यूशन का क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, बेंजीन पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से निकल सकता है, वैसे ही एमिशन पे क्वेश्चन आता है, दैट व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें कौन कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि वेल टू व्हील इमिशन किसको बोलते हैं, और टोटल लाइफ साइकिल इमिशन किस चीज को बोलते हैं। तो वेल टू व्हील इमिशन मींस एक तो टेल पाइप इमिशन, जो गाड़ी की जो साइलेंसर होता है गाड़ी का, जहां से वो एग्जिट करता है, एग्जॉस्ट करता है गैसेस, वो इमिशन, प्लस द इमिशन ड्यू टू फ्यूल प्रोडक्शन, जो इमिशन तेल को बनाने में लगा, जो पेट्रोल उस गाड़ी में डाला, उस पेट्रोल को बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ, उस पेट्रोल को बनाने में जितना इमिशन हुआ, वो इमिशन और जो टेल पाइपलाइन से इमिशन निकल रहा है, वो दोनों को मिला के बनता है वेल टू व्हील इमिशन। ये पॉइंट्स को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अनदर इज लाइफ साइकिल इमिशन। लाइफ साइकिल इमिशन इज अ मोर कॉम्प्रहेंसिव इंडेक्स, और इसमें क्या क्या आता है याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल्स दोनों का इमिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बन रही है तो उस टाइम पे भी वो इमिशन भी काउंट किया जाएगा। और लाइफ साइकिल इमिशन में क्या होगा, लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्रहेंसिव, और वेल टू व्हील इमिशन इसमें आएगा ही।
प्लस इसमें इमिशन ड्यू टू व्हीकल एंड बैटरी प्रोडक्शन, ये इमिशन भी आएगा। प्लस इसमें एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है ये कब खत्म होगा, तब तक इससे कितना एमिशन निकलेगा, या इसको वापस रिसाइकल करने में जितना एमिशन होगा, जितना फ्यूल लगेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने से जितना एमिशन निकलेगा, वो सारा एमिशन इसमें कंट्रोल हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं द लाइफ साइकिल एमिशन। डन। तो अब हम इस एडिटोरियल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और इसमें बस यही दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहली चीज ऑथर सेज अबाउट नेट जीरो इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि अगर आपको मोबिलिटी में नेट जीरो लेके आना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप फुल ई व्हीकल पे जाओ, या हाइब्रिड ई व्हीकल पे जाओ, या फिर टोटल कन्वेंशनल व्हीकल्स पे रहो। तो पहली चीज बोलते हैं कि इन ए हाइब्रिड ई व्हीकल देयर इज एन इंटरनल कंबशन इंजन, आईसीई जिसको बोलते हैं, जिसमें फ्यूल डलता है और वो फ्यूल इग्नाइट होता है, और प्लस इसमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बैटरी के लिए, और ये बैटरी भी गाड़ी को पावर देती है। और गाड़ी जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है, जब वो बैठ जाता है, या बैटरी जब डेड हो जाती है, तो उसके बाद या स्विच उससे पहले ये फ्यूल पे भी कर सकता है। ये ऐसे समझ आ सकता है कि एलपीजी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज एलपीजी पेट्रोल, इन दोनों में से एक होगा, या एलपीजी प्लस पेट्रोल दोनों होगा, प्लस होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो चीजें होंगी, या तो बैटरी होगा, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, या फिर दोनों होंगे, बैटरी प्लस इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। अब जिस गाड़ी में इन चारों में से ओनली बैटरी होगा, उसमें इंटरनल कंबशन इंजन जो है होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इंटरनल कंबशन इंजन? क्योंकि कंबस्ट कुछ करना ही नहीं है, खाली बैटरी है। बैटरी चार्ज कर दी, चार्ज करने के बाद जितना चलाना है चला लो, बैटरी खत्म हो गई, दोबारा से चार्ज कर लो, दैट्स इट। नो टेल पाइपलाइन एट ऑल, नो कंबस्ट, नो एग्जॉस्ट, नथिंग एट ऑल, जीरो इमिशंस, दैट इज फुल बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये किसी और चीज पे चलता भी नहीं है। नाउ हाइब्रिड व्हीकल से क्या होगा, कंबशन भी निकलेगा और सब कुछ होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैं अभी आपको इलस्ट्रेट करके भी दिखा दूंगा कि ये एक्चुअल में होता कैसा है। सो व्हाट इज फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द हाइब्रिड एंड फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो फ्यूल इकोनॉमी जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि इसमें दोनों चीजें लगती है ना। तो 1.5 टू 2 टाइम्स जो है ज्यादा बेटर होती है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मींस कि आप कितना फ्यूल खर्च करते हो और आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो उस फ्यूल को खर्च करने में। तो कितना एमिशंस निकलता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल रिजल्ट इन लोअर एमिशंस, और इवन इफ द फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड एनर्जी मिक्स इन इंडिया, तो 2030 तक व्हेन द रिन्यूएबल एनर्जी काउंट और रिन्यूएबल काउंट ऑफ इंडिया इज ग्रेटर, 2030 तक जो हमारे टारगेट्स है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे, फॉर अ ग्रेटर शेयर ऑफ द ग्रिड इमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। तो ग्रिड इमिशन कम हो जाएंगे ऑलरेडी, और उसकी वजह से जो है अ कूल ऑफ 79% विल बी अचीव्ड, कि 79% तक इमिशंस खत्म हो जाएंगे। एंड 20 to 23% लोअर इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं कौन? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, किसके लिए? अगर हमारा क्वेश्चन मेंस में आता है दैट अ शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, इज द फ्यूचर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और इज द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, और हैज और encompasses द फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हर एक चीज, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए,
तो हमें मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के डोमेन, क्वेश्चन के जो डायमेंशन है यही होंगे, इधर इट कैन बी रिलेटेड टू एनर्जी और इट कैन बी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ओवरऑल। ठीक है ना। तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट हाउ मच इमिशंस विल बी रिड्यूस्ड, हाउ मच फ्यूल एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, एंड हाउ टू गेट दिस थिंग अडॉप्टेड बाय ऑल द पीपल। हम लोगों का बिहेवियर चेंज कैसे करें कि वो कन्वेंशनल व्हीकल से शिफ्ट करे किस पे, फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। जबकि कन्वेंशनल व्हीकल अगर 3 लाख रुपए की आती है यहाँ पे, छोटी से छोटी गाड़ी 3-4 लाख रुपए की आती है अगर छोटी से छोटी गाड़ी, तो वहीं पे अगर आप देखो तो 8 लाख से आती है, 8 लाख में आती है छोटी से छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कैसे इतना बड़ा शिफ्ट करे कोई कि डबल करे अपना खर्चा किस पे, एक गाड़ी लेने पे, है ना। और कन्वेंशनल व्हीकल ऐसा है कि कहीं पे भी जाओ तेल भराओ, तेल की जो पंप है वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो यहाँ पे लिखे हैं, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है। नॉट ओनली चैलेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कि चार्जिंग यूनिट्स नहीं है, फास्ट चार्जिंग यूनिट्स नहीं है। एक गाड़ी को चार्ज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। और फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, ग्रिड रिलायबिलिटी नहीं है ना। तो यही पॉइंट्स है जो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करता है। तो चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? पहला है कि ग्रिड रिलायबिलिटी नहीं है, हाईवेज पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और व्हीकल कॉस्ट्स बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। सो इसीलिए द ऑथर सजेस्ट्स फर्स्ट इज वी शुड ट्रांसफर टू हाइब्रिड, we should not transfer ourselves, or we should not directly jump to the fully this full electric vehicle, that is totally battery powered electric vehicle, because अगर आप देखो तो जो लाइफ साइकिल एमिशन होगा वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो नाउ दी ऑथर ऑल्सो हाईलाइट्स हेयर कि वी शुड इंट्रोड्यूस दी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि यूजिंग दी काइनेटिक एनर्जी, है ना, रिकवरिंग दी काइनेटिक एनर्जी। और आप ब्रेक मारने के बजाय ये कर लो दैट देयर शुड बी स्लोइंग डाउन एंड इंजन शुड बी स्विच ऑफ। पहले ही स्विच ऑफ स्विच ऑन इंजन होना चाहिए कहाँ पे, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स आती है। तो प्लस ऑथर ऑल्सो हाईलाइट्स की जो परचेजिंग प्राइस है हाइब्रिड व्हीकल्स का, दिस इज ओनली 5 to 15% हायर देन द कन्वेंशनल व्हीकल्स। तो दिस मेक्स इट अ इजी टू गो ऑप्शन फॉर द मिडिल क्लास when it comes to the mobility or when it comes to purchasing a car। ठीक है। तो ये दो चीजें थी। और इसके बाद we will shift to this article which talks about the workers और the housework, जो औरतें घर पे काम करती है। उस हिसाब से औरतें घर पे 7 घंटे काम करती है कंपेरेटिव टू मेन हु इन्वेस्ट ओनली 3 hours इन हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, ये घर का काम, हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। कौन अपनी मम्मी की हेल्प करता है ये सब करने में, या कौन ऐसा है जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है ये सब काम करने में? तो द सर्वे हाईलाइट्स हियर। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट, जुलाई में ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक स्कीम जिसका नाम था कलाई नगर मगालिर उरीमई थोगई थित्तम, और वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम। इसको याद रखना है, वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम। और वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम क्यों किया था? बिकॉज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड द वुमेन्स अनपेड लेबर। ठीक है, और अनपेड लेबर के बदले इनको 1,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। एंड दिस वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय मद्रास हाई कोर्ट एंड सेड कि वुमेन होम मेकर्स जो है दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, जो खरीदी जाए हस्बैंड के द्वारा। अगर एक वाइफ, अगर एक कपल रह रहा है और हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी खरीद के अपने नाम पे कर रहा है, दे हैव द वुमन, द वाइफ हैज इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। वाई सो? बिकॉज दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसमें, कि इट्स नॉट ओनली द मेल हु इज अर्निंग, इट्स द वुमन हु इज प्रोवाइडिंग हिम ऑल द फैसिलिटीज टू अर्न, है ना। वो उसका खाना बनाती है, उसके बच्चों को पालती है, देन ओनली ही इज एबल टू गो एंड just go and invest in the property and earn. So that is why woman has an equal share in that property also. So the data here shows that a difference between फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और यही एक पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ता है डिस्पाइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है दैट लास्ट 2 decades में द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज फॉलन।
तो 30% से ये 24% हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, डिस्पाइट इस चीज के कि एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनरोलमेंट्स बढ़ने से क्या होगा, वुमेन विल बी, जो पहले लेबर मार्केट में आता, वुमेन लेबर जो मार्केट में आता काम करने के लिए, वो वही होता जिन्होंने ड्रॉप आउट किया होगा स्कूल से और उसके बाद काम करने आ गए। तो नाउ दे आर एंगेज्ड इन स्कूल्स। सेकेंड थिंग इज दे माइट बी एनरोलिंग इन दी हायर एजुकेशन। थर्ड थिंग इज कि अगर आप देखो तो इट्स अ 2 डेकेड फिगर, है ना। ही सेज दैट इन द लास्ट 2 डेकेड्स, तो जो अर्लियर डेकेड था, जो आज से 10 साल पहले, जो 20 साल पहले एनरोलमेंट बढ़ रहा था, उसका इफेक्ट हमें अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में दिखना चाहिए था। ठीक है, ऑल्दो इट डिक्रीज्ड, बट अब जो है उसका इफेक्ट आना चाहिए कि जो औरतें उस टाइम पे 10th क्लास में रजिस्ट्रेशन करा रही थी, 10th क्लास से ऊपर जा रही थी पढ़ने लड़कियां, वो लड़कियां अब लेबर फोर्स का पार्ट बननी चाहिए थी, है ना। बट दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज अ इंडिकेशन टू वरी अबाउट। इसके बाद ऑथर टॉक्स अबाउट दी साउथ एशियन कंट्रीज एंड ब्रिक्स, जिसमें ये इंडिया को कंपेयर करता है बेस्ड ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड इट सेज कि इंडिया, जहां पे द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज सेकंड हाईएस्ट, the labor force participation rate is lowest, even lower than all the countries in BRICS in South Asia countries, excluding Russia only. तो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है, जबकि हमारा पॉपुलेशन रेट सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन नंबर सबसे ज्यादा है। कंपेरेटिवली अगर चाइना का देखा जाए तो फीमेल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कहाँ 24% और कहाँ 61%। तो आई गेस दैट्स ऑल। इसके बाद author highlights here some points about the time and hours spent in household chores by women and male, married, unmarried, divorced and all. इतना डेटा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही याद रहेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, 7 hours and 3 hours and that's it. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इससे ज्यादा याद रहेगा भी नहीं। Coming back to the last editorial, और this article is about पाकिस्तान, ठीक है, एंड द टेररिज्म। तो टेररिज्म की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, टेररिज्म का डेफिनेशन अगर आप देखो तो इट्स एन एक्ट विच कैन नॉट बी गुड और बैड, इट्स बैड इन नेचर, देयर कैन बी नो गुड टेररिज्म एंड नो बैड टेररिज्म, इट्स ओनली बैड टेररिज्म, देयर इज नो गुड एंड नो बैड टेररिज्म। तो इट वाज वंस सेड बाय बॉब मार्ले एंड ही सेज दैट until the basic human rights until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship and world citizenship and rule of international morality will remain in but a fleeting illusion. ठीक है, illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War, war. So this is the quote which Bob Marley said once, and he talked about actually the terrorism and violation of human rights, and that is how the human rights are affected by terrorism, and how the effect of terrorism, effect of violation of human rights uh,
in the counter aspect affects the terrorism. So the protection offered by the Human Rights Convention does not cease in case of the armed conflict, as was highlighted by International Court of Justice. And you can no more win a war than you can win an earthquake. ठीक है. So it's always suggested that you should not. Janet Rankin was the author, ठीक है, of this quote, and the author highlights that you should not focus on winning the war because you cannot win an earthquake, है ना? Same as the earthquake brings in the destruction, war will only bring the destruction only. It will not bring anything else. War is no longer. War will never bring you peace. War is there for the destruction only. So now highlighting the terrorism aspect of Pakistan, and the author here highlights कि जो अभी अटैक हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में, दैट इज द वेस्टर्न रीजन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, वहां पे अटैक हुआ है, और वहां पे अटैक ऐसा हुआ दैट 54 लाइव्स 54 पीपल डाइड, 200 इंजरी हुई, और सेम अटैक इससे पहले भी हुआ था सेम रीजन में, और 74 पीपल वर किल्ड. व्हाई? बिकॉज देयर इज दिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान. एंड दी ऑथर हाईलाइट्स कि यहाँ पे चल क्या रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल देयर, वहाँ पे जो भी चल रहा है, ठीक है, हमें उसका कुछ नहीं करना है. देयर इज दिस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ठीक है, जो यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो जिसने ये अटैक कराया है. अब असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट पाकिस्तान इज करंटली पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर इट्स डेकेड लॉन्ग स्ट्रेटजी ऑफ सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल गोल्स. तो जो ये ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल गोल्स जो इसके थे, दैट इज अबाउट कश्मीर, अबाउट चाइना, अबाउट द डोमिनेंस इन द जियोपॉलिटिक्स, जिसमें चाहे ये यूएस टिल्टेड था कभी, ठीक है, और द यूएस वाज टिल्टेड टू इट, और इट वाज काउंटरिंग द कम्युनिस्ट regimes of Afghanistan. Everywhere it used these mujahideen and it used the deep state, ठीक है, और उस डीप स्टेट को यूज करके इट सपोर्टेड द मिलिटेंसी, इट सपोर्टेड द टेररिज्म. हाउएवर इसके बाद क्या हुआ 1990s तक, इट वाज यूजिंग द इंट्रा मुजाहिदीन सिविल वॉर, एंड उसके बाद व्हेन तालिबान toppled, when the Taliban government was toppled by USA, so Pakistan played a double game. That is, first it joined the America's war against Taliban, and it harbored the Taliban also. ठीक है, तो दोनों साइड से उनको भी सपोर्ट कर रहा था, इनको भी सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई, पाकिस्तान का अंदर का स्ट्रक्चर खत्म हो गया. वहां पे एक डीप स्टेट राइज कर गया, वहां की गवर्नमेंट, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का पावर, वहां का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सारा मिलिट्री के हाथ में चला गया. एंड दी पावर पॉलिटिक्स जो था वो इतना गंदा हो गया दैट दी फंडिंग एंड द इकोनॉमिक ड्रेन ड्यू टू दी टेरर फंडिंग हैपेंड. और अगर आप आज देखो तो हमने लास्ट टाइम अभी देखा था 2 हफ्ते पहले दैट इट हैज द IMF हैज प्रोवाइडेड अ ग्रांट, अ बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान. ठीक है, तो देयर इज दिस organization, that is Islamic State of Khorasan, which has emerged as the most powerful armed opposition to the Taliban regime in Kabul and the porous borders of Afghanistan, Pakistan. There is now instability or political gridlock, and deteriorating economy of Pakistan is now a challenge to the security. और अब जो दो चैलेंजेस है पाकिस्तान को जो वहां पे फेस हो रहे हैं, वन इज पाकिस्तानी तालिबान एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, जो वहां पे टेरर ग्रुप बन गया है. ठीक है, सो नाउ द ऑथर सजेस्ट्स हियर टू द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान दैट दे शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन good terrorism and bad terrorism based on the geopolitical interests. The terrorists who are there against India, they are good, and terrorists who are against the Pakistan, they are bad. That is not the case.
both the terrorists are bad only. No terrorism ever can be called as good terrorism. It's always bad terrorism. And India has always opposed the violence. India has always opposed the violence, the terrorism, and the acts of terrorism. So this was all about today's discussion. I thank you for joining in here. Okay, at Perfection IAS YouTube channel. If you have any doubts regarding your preparation, regarding these editorial discussions, you want to ask any question, you can call us on this number. Ask for my name. My name is Shahanshah. My name is, you can call me SK. And now I wish you all the best. Good luck.